میری زبان کو ذکر شہ کر بلا میری زبان کو ذکر شہ کر بلا آنکھیں یہ کہہ نہیں ہے کہ عشق کے عذاب ملے میری زبان کو ذکر شہ کر بلا ملے ایمان والے جیتے ہیں اس آرزو کے ساتھ ایمان والے جیتے ہیں اس آرزو کے ساتھ جنت ملے ملے نہ ملے کر بلا ملے میری زبان کو ذکر شہ کر بلا ملے وہ عباس تو وفاؤں کا پروردگار ہے عباس تو وفاؤں کا پروردگار ہے عباس کی مثال زمانے میں کیا ملے میری زبان کو ذکر شہ کر بلا ملے وہ آدھی شکست ہو گئی فوجے یتیم کی آج شکست ہو گئی فوج یزید کی بڑھ کے گلے جو ہوئے شہ کر بلا ملے میری زبان کو ذکر شہ کر بلا ملے وہ پوچھا لپٹ کے بالی سکینہ نے شاہ سے پوچھا لپٹ کے بالی سکینہ نے شاہ سے بابا بتاؤ تم کو کہیں پر جگہ ملے میری زبان کو ذکر شہ کر بلا ملے وہ اکثر سکینہ شام کو کہتی کی بات سے اکثر
سکینہ شام کو کہتی تھی بادشاہ میرا نہیں ہے میں شاہ خدا ملے میری زباں کو ذکر شب کر بلا ملے او دل کش کی آرزو ہے کہ مرنے کے بعد بھی دل کا آرزو ہے کہ مرنے کے بعد بھی مجھ کو کفن کی شکل میں فرش عذاب ملے مجھ کو کفن کی شکل میں فرش عذاب ملے میری زبان کو ذکر شہ کر بلا شہ کر بلا رحم الله من قرأ سورة الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين وجد الحسنين أبو العاص بن محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم والله إني لمخرج أشرا ولا بكرا ولا ظالم ولا مفسدة بل إنما خرجت لطلب الصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف
ونحان منك واسيرا بصيرة جدي علي بن ابي طالب صلاة محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، ماتمداران سید الشہداء، یہ 1448 ہجری کا محرم کی جس کی یہ چوتھی مجلس ہے، آپ سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ذکر حسین کے لیے، ذکر اہل بیت کے لیے، اپنے وقت کے امام کو پرسا دینے کے لیے، زہرا کو پرسا دینے کے لیے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ بڑے مقدر کی بات ہے کہ جو ہم اس سال اپنے قدموں سے چل کر اس فرش ادا تک آ گئے۔ اگر ہم اس فرش تک آ گئے تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اہل بیت کا، کہ پروردگارا تو نے دوبارہ ہمیں یہ زندگی دی کہ ہم ذکر اہل بیت کو سن سکیں اور ذکر حسین کو کر سکیں۔ یہ شکر کا مقام ہے، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں اس دنیا میں جو یہ تمنا لے کے بیٹھے تھے کہ اس سال جب محرم آئے گا تو ہم فرش ادا بچھائیں گے، ہم فرش ادا پہ آگے بیٹھیں گے، ہم فرش ادا پر آ کر کچھ چیزیں سنیں گے، لیکن وہ تمنائیں، وہ آرزویں، وہ خواہشیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، انہیں یہ محرم نصیب نہ ہو سکا۔ لہذا ہم اور آپ جتنے بھی جو اس فرش پہ بیٹھے ہیں ان سب کو چاہیے کہ شکر ادا کریں کہ پروردگارا تو نے ہمیں یہ موقع، یہ سعادت نصیب فرمائی کہ جس میں ہم ذکر اہل بیت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ میرا موضوع مقصد علیہ السلام سے مختلف ہے، ابھی تک اتحاد میں چاہتا ہوں کہ اس کو بہت جلدی سمیٹ دیں اور دوسرے اپنے جو امام حسین علیہ السلام کے مقصد ہے ان کی طرف بھی ایک مختصر سا گوشہ آپ تک پہنچاتا چلے۔ ہے تو بہت طویل بحث، لیکن چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی باتیں آپ تک پہنچ جائے تاکہ معلوم ہو کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے، وہ کربلا کیوں واقع ہوئی، وہ مولا حسین اپنے گھرانے کو لے کر تب کے بے صحرا میں کیوں گئے، مولا حسین نے اپنے کلیل جوان کے سینے پر نیزہ کیوں کھلوایا، نیزہ کیوں مروایا، صرف اس لیے کہ اسلام بچ جائے، قرآن بچ جائے، میرے نانا محمد کا لایا ہوا دین لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہی بات ہے نا۔ اور دیکھیں کہ میری تقریر میں ایک اور لفظ تھا، چونکہ میں اتحاد اور شیعہ دو چیزوں کو لے کے چل رہا تھا کہ شیعہ ہونا بھی بڑے فخر کی بات ہے، لیکن شیعہ ہونا بھی کردار سے چاہیے، ہے نا۔ اور اماموں کی حدیث ہے لا شیعتنا الا من اتقى الله وطاعته، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ ہمارا کوئی بھی شیعہ نہیں ہے مگر یہ وہ شیعہ ہے کہ جو تقوی الہی کے اختیار کرے، اللہ کی اطاعت کو بجا لائے، وہ شیعہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری حدیث دیکھیں، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انما شیعتنا الحرص، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو جب جہاں بولتا ہے سوچ سمجھ کے
اور मौके की नजाकत को देख के बोलता है। हर जगह अपनी जबान को नहीं खोलता। सलात मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए सलवार पढ़ने में कंजूसी ना किया मैं इस पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो बयान कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बस अपनी बात पर कायम हूँ। इमाम फरमाते हैं कि इन्नमा शियतुना अल-खुर्स, कि हमारा शिया वो है कि जो वक्त की नजाकत को देखते हुए बोलता है। आज दुनिया में देख लें कि जितने भी इंसान है, हर इंसान बोलता है, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी मकाम पे हो, या वो अपनी तारीफ करेगा, या अपने खानवादे की तारीफ करेगा, या अपने देश की तारीफ करेगा, या अगर किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो अपनी पार्टी की बात करेगा, लेकिन बात जरूर करेगा। और मौला का कलाम भी है, मौला कहना चाहते तुम तो बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। हर इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। शिया भी वही है, शिया के लिए भी यही लागू है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहते हैं कि शिया वो है कि जब बोलता है तो मौके की नजाकत को देखकर, मौका और महल देखकर बोलता है। हर इंसान के पास जबान है, हर इंसान के पास जबान है, हर इंसान के पास जहन है, लेकिन वो जब दिल चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है, जिसके बारे में चाहता है बोल देता है। लेकिन शिया का मकाम वो है जो इमाम बयान कर रहे हैं कि शिया का मकाम वो है कि बोलो, लेकिन वक्त की नजाकत को देखकर बोलो। जहां पे मौका है वहां पर वो बात बोलो। तो इमाम ने फरमाया, शायद इमाम ये बताना चाह रहे हैं कि लोग ये हुक्मान बच रहे थे ना कि रसूल का दिमाग काम नहीं कर रहा था, बुखार हो गया था, लेकिन रसूल कौन है? वो है जो फखरे शिया है, वो है जिनकी हम पैरवी कर रहे हैं, जिनका हम इत्तेबा कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ना कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो क्या लिखेंगे, वो क्या बताएंगे, वो क्या बोलेंगे। इमाम कह रहे हैं कि शिया वो है कि जब बोलता है, जबान खोलता है, वक्त की नजाकत को देखता है, मौका और महल को देखकर बोलता है। इसी तरीके से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, आपको मिसाल दी, उसके बाद इस बात को मुकम्मल करता हूं। हर इंसान के पास जिंदगी में कोई ना कोई हादसा होता है। किसी के यहां मैयत हो जाए, किसी के यहां इंतकाल हो जाए, आप उसके पास जाइए। अगर किसी का जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए तो जब आप उससे कुछ पूछिएगा तो दिमाग काम नहीं करता, पूछेगा कुछ, बताएगा कुछ, या बोल ही नहीं सकता है, ऐसा कि नहीं। और अगर किसी के यहां 2-4 मैयत इकट्ठा हो जाए, अल्लाह न करे कि कभी किसी को ये मंजर देखना पड़े, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी के ये मंजर हो जाए कि 2-4 लोग एक साथ इंतकाल कर जाए किसी हादसे में या किसी और वजह से, अब आप इसके आ जाइए, पूछिए, उसका जहन काम नहीं करेगा, उसका जहन काम नहीं करेगा। लेकिन आप देखें कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने करबला में पूरा खानवादा मिटा दिया, करबला से शाम, शाम से तीसरा, तमाम जगह पर गए, लेकिन यजीद के दरबार में जब यजीद का खरीदा हुआ खतीब बयान दे रहा था, कोई दीन नहीं आया, कुरान झूठा, नबी झूठे, रसूल झूठे। इस मकाम पर सज्जाद का क्या दिमाग काम कर रहा था? कह रहे थे, तुम कह रहे हो ना कि कोई दीन नहीं आया, कोई पैगाम नहीं आया। जब खुतबा शुरू किया है, मजबूर होना पड़ा, कहा खतीब अजान दे, इसलिए मोहम्मद वाले जिंदाबाद जिंदाबाद।
اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیا کہا یہ خطیب تم اذان دو. امام سجاد رک گئے. رکنے کے بعد کیا کہا اے عجیب بتا اس اذان میں تیرے نانا کا نام آیا میرے نانا کا. اے عجیب تو یہ بتا کہ اس اذان میں یہ جو اللہ اکبر کہا جا رہا ہے, یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے, اللہ کی گواہی دی جا رہی ہے, یہ کس کا پیغام ہے؟ تمہارے جب لے کر آئے تھے یہ پیغام یا میرے جب لائے تھے پیغام؟ آپ دیکھیں یہ ذہن کس کام کا. اب آپ ایک بات کا اندازہ لگا لیں کہ اتنی بڑی مصیبت کو جھیلنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کا ذہن ذرہ برابر بھی ادھر کا ادھر نہ ہوا کہ یہ رسول کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے, پورا قرآن اپنے سینے پر نازل کرنے والا ہے, اپنے سینے پر سمانے والا ہے, یہ زبان کیسے بچ جائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ لہذا ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ موقع کیا ہے, محل کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ بات کوئی اور ہو رہی ہو, ہم زبان کسی اور سلسلے سے کھولیں. شیعہ کا کردار اسی لیے امام نے کہا ہے لنا زانا, ہمارے لیے باعث ذلت بنو, ولا تکون لنا شیئا, ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو, ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو. کیوں کہا؟ تاکہ ایک مقام دنیا والوں کو پتا چلے کہ شیعہ ہوتا کون ہے. یہ صرف جو 2 مہینہ 8 دن ہم جو عزاداری کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, تقریبیں کر رہے ہیں, یہ جو ہم دوسری جگہ سے خطبہ خطیب علماء کو بلا رہے ہیں, اس کا مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کوئی پیغام کوئی میسج ہے یا نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نا. جب ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ ہاں ان کے ہاں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے کہ جو دل پر ناگزیر ہوا ہے, جو دل پر بہت سخت پڑا ہے. لہذا ہم بھی تفتیش کریں کہ ایسا کیا ہوا ہے ان کے ہاتھ جو 2 مہینہ 8 دن اپنا کاروبار, اپنا گھر, اپنا سکون, اپنا آرام, اپنا چین, تمام چیزیں چھوڑ کر ذکر حسین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہے کوئی ایسا مذہب والا کہ جو اس وقت رات کے 10 بجنے والے ہیں آئے اپنا سکون چھوڑ کر اس فرش پہ آئے اپنے مذہب کی بات کرنے کے لیے؟ نہیں ملے گا, چونکہ اسے اپنا سکون پیارا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے, اور جو نبی دین لے کر آئے, جو پیغام لے کر آئے, وہ حق تھا. لہذا شیعہ بننا ہے تو ایسا بنیے کہ جہاں کلام کریے لوگ کہیں کہ ہاں یہ پیغمبر کا شیدائی ہے, لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ اہل بیت کا شیدائی ہے. ضروری ہے ہمارے لیے صرف لفظ شیعہ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. میں نے کہا کہ میں 2 باتوں کو اکٹھا لے کے چل رہا ہوں, اسی لیے یہ تذکرہ آ گیا. اور ایک بات کہتا چلو, میں نے بہت عرصہ پہلے جب جامعہ نام تعلیم کاتب میں زیر تعلیم تھا, موصوف بھی تشریف رکھتے ہیں, نہیں تو تعلیم یافتہ ہے, وہاں پہ میں نے ایک طالب علم سے جو ہمارے کلاس میٹ تھے ان سے ایک جملہ سنا تھا, ایک واقعہ, اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ بات اور کمپلیٹ ہو جائے. امام کا یہ قول ہے کہ جب ہمارا کوئی شیعہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے, کلام ہمارا ہوا کرتا ہے. کلام ہمارا ہوا کرتا ہے. ہمارا مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. دنیا مصیبت کی جگہ ہے, جہاں یہ دنیا وہ جگہ ہے کہ جہاں بابا آدم بھی مصیبت سے گزرے ہیں, تو ہم اور آپ کون سی چیز ہے؟ ہمیں بھی مصیبت سے گزرنا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے نا.
अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम इस मुसीबत को किस तरीके से झेलते हैं और इस मुसीबत से कैसे पार होते हैं। अब इसी वाक़े इस हदीस के दौर में एक वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक जमाने में बहुत जालिम चुन के शियों को कत्ल कर रहा था। जहां कोई शिया मिल जाए उसे कत्ल कर दे, जहां कोई मिल जाए उसे कत्ल कर दे, कोई बता दे कि ये शिया है फिर हम कत्ल कर दिया जाए। जो उसका दस्तूर था बहुत जालिम और जाबिर था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जमाने में, हर दौर जो अंबिया से आता हुआ है आज तक शियों पे जुल्म होता आया है कि नहीं ऐसा। अभी हालात हाजरा में भी देखिए शियों पे जुल्म हो रहा है ना ऐसा। तो वो जालिम बादशाह चुन चुन के पकड़ रहा था सबको और कत्ल कर रहा था। लेकिन चूंकि एक शिया हुकूमत का कायदा था, पढ़ा लिखा था और उसे करना है तो भाई दरबार में था। तो वजह बताओ, ये कोई वजह थोड़ी है कि ये शिया है हमने कत्ल कर दी, क्योंकि उसे अपनी हुकूमत भी तो बचानी है। अब जब बात आई तो उसने तमाम वज़रा और जितने उसके यानी चाहने वाले थे, जो बड़े बड़े हकीम थे, दानिश्वर थे, सबको इकट्ठा किया, बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा कि बताओ इसे कैसे कत्ल किया जाए, कोई वजह ठोस दलील दी जाए ताकि कत्ल करने के बाद कहा जाए कि हाँ इसके बुनियाद पर कत्ल किया जाए। सबने सोचा बड़ी देर तक, कई दिनों तक मीटिंग चलती रही, कोई हल नहीं निकल रहा था। लेकिन इत्तेफाक ये है कि वो शायर अहले बैत था, वो शायर अहले बैत था। मकाम देखिए शायर अहले बैत का, जो सच्चे और खालिस नीयत से अहले बैत की शान में अशार कहते हैं, अल्लाह उसकी हमेशा मदद करता है। और ये हदीस आप ध्यान में रखें कि जब हमारा शिया, कोई भी शिया मुसीबत में होता है तो जबान उसकी होती है, कलाम हमारा होता है। सबने कहा जैसे ठीक है शायर है तो कोई एक सख्त मिसरा दिया जाए ताकि वो उसको कोई मिसरा न लगा सके। कहा ठीक है, बादशाह ने कहा बताओ कोई सख्त मिसरा। सबने सोचना शुरू किया, लेकिन मैंने पहले ही कोट कर दिया है कि मैंने ये वाकया अपनी क्लासमेट से सुना है। मौलाना साहब जो इस वक्त मजहब में करबला में मौजूद है, वज़ीर तालीम है, उनसे मैंने सुना था। बात आई है तो बयान कर रहा हूं। अब उन्होंने बयान किया, कहा कि सबने सोचा और सोचने के बाद एक मिसरा निकाला। सबने कहा कि मौला ये शिया बादशाह, ये तो मौला का चाहने वाला है, शिया है। तो एक बात वो भी मानते थे कि अली हमेशा हक पर रहे, अली हमेशा हक पर थे, जालिम हुकूमत है, लेकिन वो भी इस बात के मानने पर कायल है कि अली ने हमेशा अदल इंसाफ से काम लिया है। अब इन्होंने एक शेर, एक मिसरा कहा, क्या कहा कि उसको ये मिसरा दिया जाए दरबार में बुलाने के बाद। दरबार में उसको बुलाएगा, कहा कि ये मिसरा है, उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर, ये मिसरा है, उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर। अब ये मिसरा दिया गया, कैसे मिसरे खाने लगा, मौला का चाहने वाला है, ताकि वो थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। दोहराता हुआ दरबार से निकला, घर तक गया, परेशान, कोई जहन में आ ही नहीं रहा। वो परेशान हाल है, बार बार यही जुमला दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। रात हो गई, शब हो गई, सुबह हुई, दरबार में आया, लेकिन अभी तक मिसरा उसको जहन में नहीं है।
मैंने कहा ये हदीस जहन में रखिएगा कि जब मेरा चाहने वाला मुसीबत में हो तो जबान उसकी होती है, कलाम हमारा हुआ करता है। दरबार में आया, दरबार सजा हुआ है। अब दरबार सजा हुआ है, सब मुंतजिर है कि देखते हैं मिसरा लगा पाता है या नहीं। अब ये चाहने वाला कहता है मिसरा दोहराओ, वजीर मिसरा दोहरा रहा है, उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर। एक मरतबा चाहने वाला इस मिसरे को दोहराता है, कहता है कि उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर। अचानक उसके जहन से, उसकी जबान से ये फिक्रा निकला कि नबूवत के जलवे इमामत में देखो, उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर। इतना करे मोहम्मद। अब सारे वगैरह परेशान, कहने लगे ये तो बड़ा सख्त था, तो फिर लगा दिया। कत्ल कैसे करें, इसको तो मंसूबा बंदी हुई है कत्ल करने की। सोचिए एक शायर की भी अजमत और एक शिया की अजमत, क्या कत्ल कैसे करें। कहा अच्छा ठीक है, वजीर ने कहा अच्छा ठीक है मिसाल देते हैं, यहीं पे लड़ाइए, घर जाने की मोहलत नहीं मिलेगी। तो इसलिए कि उनका मंसूबा यही था कि उन्हें कत्ल करना। जाहिर बात है जालिम हुकूमत है। अब एक वजीर ने, एक दानिशवर ने ये मिसरा दिया कि मैदान जंग में कभी हैदर रुके नहीं। तारीख से आशना है, वो जानते हैं कि मौलाए कायनात वो है कि जिन्होंने कभी भी मैदान नहीं छोड़ा है, मैदान नहीं छोड़ा है। इसीलिए ऐसा मिसरा दिया कि मैदान जंग में कभी हैदर रुके नहीं। आप सोचिए, वो जानते हैं कि हैदर हमेशा रुके हैं, लेकिन मिसरा दिया है ऐसा कि मैदान जंग में कभी हैदर रुके नहीं। मौला का चाहने वाला है, इत्मीनान है। क्यों इत्मीनान है? उसे यकीन है कि जिसकी मैं नौकरी करता हूं, जिसकी मैं नौकरी करता हूं, जिस पर मेरा अकीदा है, वो मुझे हर मकाम पर बचाएंगे। यकीन है ना? क्या ठीक। अब कहा कि मिसरा दोहराया, मैदान जंग में कभी हैदर रुके नहीं। अब एक मरतबा उस हदीस के जहन में जाननशीन कर लीजिए कि जब भी हमारा शिया, हमारा चाहने वाला किसी मुसीबत में होता है कि जबान उसकी होती है, कलाम हमारा हुआ करता है। अब ये फिक्रा दोहराता जाता है, कहता है कि मैदान जंग में कभी हैदर रुके नहीं, मैदान जंग में कभी हैदर रुके नहीं। बेसाख्ता उसकी जबान से ये जुमला निकलता है कि बाबे जिहाद माले गनीमत के वास्ते मैदान जंग में कभी हैदर रुके नहीं। इतना के मोहम्मद वाले बाबे जिहाद माले गनीमत के वास्ते मैदान जंग में कभी हैदर रुके नहीं। ये मकाम है शिया का। ऐसे बहस नहीं करनी थी, लेकिन बात आई है तो पहुंचा रहा कि देखे एक शिया होना बहुत अजमत का मियार रखता है, एक बहुत बड़ा ओहदा है। और इस ओहदे पर जब हम आ गए तो इस ओहदे की एक जिम्मेदारी है, इस ओहदे की जिम्मेदारी है कि हम इस ओहदे को निभाएं। कैसे? जैसे अल्लाह अहले बैत चाहते, जैसा हमारा रसूल चाहता है, जैसा मौला हुसैन चाहते हैं, जैसे मौला कायनात चाहते हैं कि मेरे शिया वो हो कि हर इंसान की ज़बान पर बस एक ही फिक्रा हो, जहां देखे, जहां सुने, जहां पे देखे। और ऐसा बनिए कि अगर बैठे तो भी कोई देखने वाला कहे कि हाँ ये सलीका बड़े अहमद सलिया है। जब उठिए तो जब कोई उठता हुआ देखे आपको तो कहे हाँ ये सलीका बड़े अहमद से हुआ है। जब चले अपने कदम को आगे बढ़ाए
तो देखने वाले ये कहे कि हाँ ये कदम वैसे ही चल रहे हैं जैसे मौला कायनात में बताए। जो निगाहें जब कहीं उठे तो उसी एतबार से उठे जैसा कुरान ने बताया। जब ये हाथ कहीं किसी मदद के लिए उठे तो जहन में ये बात आ जाए कि हाँ इस हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। जो आजकल ये फैशन बना हुआ है कि हम किसी को देते हैं तो फौरी तौर पर फेसबुक पे डाल देते हैं, जहां किसी की मदद की फोटो खिंचवाया सोशल मीडिया पे डाल दिया, स्टेटस पे लगा दिया, है ना। ये आम सी बात है। देखें, इस्लाम बहुत ही प्यारा मजहब है, बहुत ही खूबसूरत दीन है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां इस्लाम कहता है कि हाँ ये चीज दिखा कर कीजिए, चीज उसका रीजन और सबब भी बताया, चीज दिखा कर करिए ताकि दूसरा इंसान भी आपको देख के वही अमल अंजाम दे। कहा कि सदका दीजिए तो अपने बच्चों के हाथों भिजवाइए। जब दरवाजे पे कोई फकीर है ना तो जो सदका भिजवाते हैं तो ताकीद है, रिवायात में है कि अपने बच्चों से भिजवाइए। क्यों? ताकि उन्हें आदत पड़े, जब वो आपकी उम्र में आएंगे तो वो अपने बच्चों को यही सिखाएंगे। ये तालीम वाले बैठे। और इस्लाम ये कहता है कि जब किसी गरीब की मदद करिए तो ऐसे करिए, कोई नेकी करिए तो ऐसे करिए कि दाएं हाथ से करिए तो दाएं को खबर न। इसलिए कि वहां इज्जत नफ्स का सवाल है, इज्जत नफ्स का सवाल है। ये बात आई थी इसलिए मैंने इस्लाही तौर पर बयान कर दी ताकि लोगों को ये भी रहे कि हम मौलाना कुछ चीजें बयान कर देते हैं ताकि हमारे भी अमल में आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मिंबर पे आने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। यहाँ पे सिर्फ साझी तौर पर हम नहीं हट सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बताना बहुत जरूरी है ताकि इंसान उस पर अमल करे, ताकि यहाँ जो हम 10 दिन मजलिस पढ़े और जो आज 10 दिन यहाँ बैठ रहे हैं, इतना वक्त दे रहे हैं, वो जाया न हो, वो जाया न हो। लिहाजा देखिए, मैंने गुफ्तगू शिया से कर ली और उसी शिया में इत्तेहाद भी नहीं है ना, इन्हीं शियों में इत्तेहाद भी नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत से कम ऐसे मकामात हैं जहां पाए जाते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इत्तेहाद बरकरार रहे हमेशा। जब भी, मैंने पहले भी बात कही, पहले भी कहा कि जब भी बात आजादारी पे आ जाए, अज़ा पे आ जाए तो सब एकजुट हो जाएगी। इसलिए कि ये मौला हुसैन का गम है जिसे ज़मात में बड़ी मशक्कतों और मुसीबतों से हम तक पहुंचाया है ना, ऐसे बात। अब आइए हमने इत्तेहाद की कुछ मंजिलें बयान कर दी। इत्तेहाद शुरू कहां से होता है? एक बात गौर करने वाली है ना कि इत्तेहाद शुरू कहां से हुआ। आज ही की ये मजलिस में मैं इस बात को कंप्लीट कर दूंगा इंशाअल्लाह। कल से मकसद इमाम हुसैन के दूसरे मौजूद की तरफ आऊंगा। तो देखो, इत्तेहाद शुरू कहां से होगा? इत्तेहाद अपने घराने से शुरू करना पड़ेगा। इत्तेहाद अपने खानवादे से शुरू करना पड़ेगा। रसूल ने यही किया था बिलशूरा में, है ना। इत्तेहाद को शुरू करने के लिए सबसे पहली जरूरत हमें अपने खानवादे से, और इत्तेहाद पैदा करने के लिए अपने घराने में परवरिश ऐसी करनी पड़ेगी कि इख्तिलाफ न हो। परवरिश ऐसी करनी पड़ेगी कि इत्तेहाद बरकरार रहे। और अगर परवरिश देखनी है तो आइए जरा मैं तारीख से आपको दिखाऊं। ऐसे बहुत सारी चीजें अगर मैं चाहूं तो पूरा अशरा इसी बता सकता हूं, लेकिन बात मेरा बस असल मकसद ये है कि जो मैंने कहा कि मेरा मौजूद मकसद इमाम हुसैन है, क्योंकि सिर्फ मकसद इमाम हुसैन इत्तेहादी नहीं है,
थोड़ी थोड़ी बातों में पहुंचाता चलो, और कल से इंशाल्लाह एक एक मजलिस में एक मौजू को तमाम कर दूंगा। इत्तेहाद आइए तारीख से दिखाए, तारीख के हमारे औलाद को देखिए कैसी परवरिश की है और कैसे कैसे घरानों ने परवरिश की है। तो जहां पर न कौल में, न फेल में, न अमल में, न किरदार में किसी जगह पे इख्तलाफ नहीं है, जिसने जिसको जितनी खजूर दी थी उसके फर्जंद ने उतनी ही खजूर उन्हें अता की, न एक ज्यादा न एक कम। न सिर्फ इशारतन कह रहा हूं क्योंकि मुझे बात ईलानी नहीं करनी है ना, ये है इत्तेहाद। अब परवरिश देखिए, एक घराना है मौलाए कायनात का, एक घराना है हारून रशीद का, इसने भी अपने बच्चों की परवरिश की, मौलाए कायनात ने भी अपने बच्चों की परवरिश की, है ना ऐसा। इसके पास हुकूमत थी, मौला के पास कभी हुकूमत थी कभी हुकूमत नहीं थी। जब हुकूमत थी तब भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, जब हुकूमत नहीं थी तब भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। लेकिन हारून वो है कि जब हुकूमत थी तब भी लोगों के दिलों पर जबरदस्ती काबिज था, दिलों पे नहीं बल्कि जिस्मों पर काबिज था, है ना ऐसा। और जब हुकूमत नहीं थी तो लोग तो मुंह भी नहीं लगा रहे थे। इधर मौला कायनात ने दो बच्चों की परवरिश की, मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन। हारून ने दो बच्चों की परवरिश की, अमीन और मामून। जरा देखिए कि इत्तेहाद परवरिश से ही होता है। कैसी परवरिश करे कि इत्तेहाद बरकरार रहे, घर उजड़ने न पाए, घर बर्बाद न हो। अगर घर को आबाद करना है तो परवरिश ऐसी करिए कि न कौल में, न फेल में, न किरदार में, न अमल में कहीं इख्तलाफ न हो। और अगर घर को आबाद नहीं करना है तो वैसे तो जानवर भी परवरिश कर लिया करते हैं, अपने बच्चों को पाल लिया करते हैं, तो इंसान की कौन सी बड़ी बात है, वो भी पाल ले, है ना ऐसा। मौला कायनात ने दो बच्चों को पाला। पूरी तारीख आपके सामने है, बस मुख्तसर बयान करना चाहता हूं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आप देखें मौला हसन और मौला हुसैन की परवरिश मौला कायनात ने जनाब सैयदा ने की, इधर हारून ने अमीन मामून की परवरिश की, इसने अपने बच्चों को हुकूमत की। अमीन कहां से था? अमीन की मां अजम थी, अरबी का अजम नहीं अरबी थी, और हारून की मां मामून की मां ये अजमी थी, फारस की रहने वाली, कहीं से वो पैदा हुआ था। वो शहीदजादी थी, वह शहीदजादे में मतलब हारून रशीद की इब्तिदादाद बेटी थी। अब देखिए कि दोनों को हुकूमत दे दी, क्योंकि वो जानता था कि दोनों भाइयों के दरमियान बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, तमाम चीजें मौजूद है। तो इसलिए एक कह रहा है कि मैं अजमी माँ का हूं, एक कह रहा मैं अरबी माँ का हूं, दोनों में यहीं से इख्तलाफ शुरू हो रहा है। दोनों की परवरिश की है हारून ने, लेकिन दोनों का इख्तलाफ पाया जा रहा है। दोनों को हुकूमत दे दी फिर भी सुकून नहीं है। लेकिन इधर देखिए मौलाए कायनात ने इमाम हसन को भी और इमाम हुसैन की परवरिश की, लेकिन वो दोनों जब नाना के कंधे पे सवार होकर जुल्फे पकड़े हुए जा रहे हैं, तो जब बड़ा भाई कह रहा है कि मामा मुझे उस गली में जाना है, तो छोटा भाई ये नहीं कह रहा नहीं मामा नहीं भैया मुझे इस गली में जाना है। क्यों? इसलिए कि परवरिश ऐसी की है
کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام کر رہا ہے، لیکن مامون نے، ہارون نے اپنے دونوں بیٹوں کی ایسی پرورش کی کہ جب مامون مر گیا دونوں بھائی آپس میں لڑے، مامون کو ہارون نے قتل کیا۔ یہاں سے پتا چلا کہ پرورش میں اگر اتفاق نہ ہو، اتحاد نہ ہو، تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام نہیں کرتا۔ اتنا کرے محمد وآل محمد۔ پرورش میں ہی آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ آپ کا بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کا مقام کیا ہے۔ اور میں اکثر اپنی مجالس میں کہتا ہوں کہ اپنے بڑے بھائی کا احترام کیا کرے اور اپنے چھوٹے بھائی کا بھی احترام کیا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کربلا سے درس لینے والے ہیں نا، مولا غازی کا علم اٹھاتے ہیں نا، مولا حسین کا تعزیہ اٹھاتے ہیں نا۔ یہ دونوں کون تھے؟ دونوں بھائی تھے، لیکن دیکھے جہاں بھائی نے کہہ دیا کہ رک جاؤ تو وہاں خاموشی سے رک گئے، کہا تلوار نہ نکالنا، تلوار کے میام میں رکھے رہ گئے، لیکن یہ نہ کہا کہ بھیا مجھے آپ نے کیوں روکا۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت بتا رہی ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں بڑا بھائی چھوٹے پہ ظلم کر رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے پہ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم اس درسگاہ پہ آئے ہیں، اس درسگاہ پہ آئے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم مولا عباس کا علم اٹھا رہے ہیں تو علم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے دل سے پوچھ لیں کیا میرا بڑا بھائی مجھ سے راضی ہے؟ اگر راضی ہے تب تو آپ علم اٹھائیے، اگر راضی نہیں ہے تو پہلے اپنے گھر کو جائیے، بڑے بھائی سے معافی مانگیے، ورنہ یہ علم اٹھانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کسی کی بہن ناراض ہے اور وہ اپنے گھر میں جناب سیدہ کی مجلس برپا کر رہا ہے تو مجلس قبول نہیں ہوگی۔ پہلے جاؤ اپنی بہن سے معافی مانگو، تب سیدہ کہیں گے کہ ہاں تم واقعاً میرے شیعہ ہو، تب مولا سجاد کہیں گے کہ ہاں واقعاً تم میرے شیعہ ہو، تب مولا کائنات کہیں گے ہاں واقعاً تم میرے شیعہ ہو۔ ہے ایسا؟ ہم اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے جو سوال کریں کہ آیا ہم نے مولا کا جو یہ غم منایا 4 دن 5 دن، ٹھیک ہے کیونکہ چاند رات کو بھی اگر شامل کر لیں تو 5 دن، اور بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 دن پہلے سے مجلسوں کا اہتمام ہونے لگتا ہے۔ تو جو ہم نے یہ مجلسیں کی ہیں، کیا کہیں ہم نے اپنے بڑے بھائی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا ہم نے کہیں اپنے بہن کا دل تو نہیں دکھایا؟ اگر ہم نے اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا، اپنے چھوٹے بھائی کا کہیں دل دکھایا ہو تو جا کر معافی مانگ لے۔ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ درسگاہ ہے، کربلا وہ جگہ ہے جہاں پھر کی بھی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کون ہیں؟ ہماری بھی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی اس فرش پہ آئے تو اپنے آپ میں، اپنے دل میں یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ گھر جائیں گے تو اب کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہاں زادارہ یہ 4 محرم بھی تمام ہو گئی۔ یہ 4 محرم کس سے منسوب ہے؟ وہ فقیر جو بچپن کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر، مولا حسین کے دوست ہیں، آگے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے دوستوں کا بھی ایک مقام ہے، اپنے دوستوں کو بھی وقت دیجیے۔ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں بیان کر دوں گا کہ اوقات کی ضرورت کیا کیا ہے، کس سے کب ملنا چاہیے، کون سی کیا ضرورت ہے۔
बचपन का दोस्त है। करबला के मैदान में एक तरफ फौज से फौज जा रही है, एक तरफ चंद सहाबी चंद दर्जन अफराद मौजूद है। ज़ैनब ये मंजर देख रही है बार बार कि जालिमों की तरफ लश्कर बढ़ रहा है। एक मरतबा भैया हुसैन से कहते हैं, भैया क्या हमारी तरफ कोई आने वाला नहीं है? क्या कोई आने वाला नहीं है? अरे आपका तो बचपन का दोस्त मौजूद है ना, जरा खत लिखे। खत लिखा है मौला हुसैन ने, अजीब और गरीब खत है। वक्त नहीं वरना मैं पूरा मसाइल पढ़ता। हाँ ज्यादा बस एक से तरह सुनिए। वक्त का फकीर है, वक्त का फकीर है वो इंसान। उसके पास मौला का जब खत आया है ना, एक मरतबा खुद से लगाया, चूमा टूटने के बाद खत को पढ़ा, लब्बे गरीब के दिल पर गिरिया करने लगा। क्या था कि मर्द फकीर तुम्हारी जानिब एक मर्द गरीब वतन का ये खत है। अब ये जब लब्बे हुसैन ने, लब्बे मौला हुसैन ने जो गरीब वतन का लिखा है ना, हबीब ताक गए, समझ गए कि मौला तो कौन सी मुसीबत आई। अश्क आंखों से जारी है। इतने में ज़ौजे हबीब इब्न मुज़ाहिर आके कहती है क्या बात है, किसका खत है? तो मौला हुसैन का खत है। तो क्या लिखा है, मजमून क्या है बताओ जरा। तो नुसरत के बुलाए है, मौला तनहा है करबला में, कोई उनका मददगार नहीं है। तो मतलब जौजा ने पूछ लिया, बताओ इरादा क्या है कोई ऐसी बामार्फत खातून है दुनिया में मिलती है, लेकिन शर्त यह है कि खालिस और मार्फत के साथ अल्लाह को जाने। अब वो कहने लगी क्या इरादा है? हबीब भी आजमा रहे हैं अपनी जौजा को, कह रहे हैं सोच रहा हूं मदद तो जाऊं या ना जाऊं। जैसे ये फिक्रा सुनाएगा, जौजा कहते हैं अभी ये लो मेरी चूड़ियां, तुम पहन लो। अरे मैं अपने आप में आका की मदद से जाऊंगे। जैसे हबीब ने ये जुमला सुना, कहे जौजा मैं सिर्फ आजमा रहा था, मैं अपने आका की मदद से जाऊंगा। विधान पे बुलाया, कहा ये घोड़ा है। उस वक्त माहौल बहुत खराब थे, कुफा के नाकाबंदी थी। तो ऐसे शहीद हैं करबला के जो बड़ी मुश्किलों से कुफा से निकले हैं मौला की मदद से। मुस्लिम बिन और सजा और हबीब इब्न मुज़ाहिर। अब ये लेकर घोड़े को एक मकान पर जाकर खड़ा हो गया। अब घोड़े से बात कर रहा है, कहता है अरे मेरे मालिक के घोड़े, अगर मेरा मालिक ना आया तो मैं तुझसे सवार होकर अपने आका की मदद को जाऊंगा। हबीब के आने में ताखीर हो गई। अब आके जैसे ये जुमला सुना है ना, एक मरतबा कहते हैं अल्लाह अल्लाह, अरे ये कौन सी मुसीबत आई है कि जहां पर गुलाम भी अपने आका पर जान को निसार करने के लिए तैयार। अजर अल्लाह खुदा के तेरे गम लगे सवाए मजलूम करबला के आपकी आवाजें बुलंद, वो चंद फिक्र और तमाम मसार को छोड़ते हुए आए वारिद करबला हुए। एक मरतबा दूर से जब ये खाक उड़ती हुई देखिए, अब एकदम ने पूछा बाबा हमारी तरफ लगता है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। एक मरतबा हुसैन ने कहा अकबर जाओ आगे बढ़ो, देखो कौन आ रहा है। अब्बास जाओ देखो कौन आ रहा है। जैसे जैसे हबीब करीब आए, एक मरतबा किसी ने कहा हम आए मौला आपके बचपन का दोस्त हबीब आया है। और हबीब ने हबीब को गले से लगाया। अब कोहरा अंदर का है। एक मरतबा ये उनसे खबर, अरे खाने जैनब ने गई। जैनब ने पूछा बाहर ये शेर कैसा? जैनब को किसी ने बताया कि हबीब आए हैं, हुसैन के बचपन के दोस्त।
ارے جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ زینب نے کہا اے اللہ کی جائے حبیب میرا سلام دینا. ارے جیسے نے حبیب کو سلام کا حبیب گھٹنے کے بعد ارے کربلا کی زمین کربلا خاکے کربلا کو اٹھایا اپنے سر پر ملا کہ اللہ اللہ یہ کون سی نسل بتائے کہ صاحب غادیوں میں غلاموں کو سلام کر رہی. اجرکم اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما ماتم حسین.